أشهد أن محمدًا رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں خوراک کے بارے میں، خوراک کی تبدیلی کے بارے میں کوئی بات کروں گا۔ اکثر دوست، بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری امائیں یہ فون کر کے کہتی ہیں کہ جسم تھکا تھکا رہتا ہے، جسم ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے، جسم میں جان نہیں رہتی، بوجھل پن رہتا ہے اور ٹینشن کوئی نہیں ہے، پھر بھی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی وجوہات رہتی ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے لیکن جسم پریشان رہتا ہے، ذہنی ڈپریشن رہتی ہے، کام کوئی نہیں ہے لیکن جسم پھر بھی تھکا ہوا ہے، بوجھل پن ہے۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کو خوراک میں تبدیلی بتاؤں گا کہ ایسی تبدیلی ہے، دوائی کھانے کے بغیر بھی آپ کا جسم تگڑا رہے گا، آپ کا جسم ایکٹیو رہے گا، آپ کے جسم میں تھکاوٹ نہیں آئے گی، ٹینشن بوجھل پن نہیں آئے اور آپ کا جسم ہمیشہ خوش رہے گا۔ اور ہونا بھی ایسے چاہیے، انسان کا جسم ہونا بھی ایسا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو بوجھل پن نہیں ہونا چاہیے، جسمانی طور پر اس کو تگڑا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خوراکیں یہ ہے، مرد ہیں یا عورتیں، میں ایکول بتا رہا ہوں، دونوں کی خوراکیں بتا رہا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ بایابادی چیزیں کیا ہیں؟ چاول ہیں، آلو ہیں، شکرگندی ہے اور ایسی چیزیں، بڑا گوشت ہے، یہ آپ رات سوتے وقت نہ کھائیں۔ رات کا کھانا کوئی بھی آپ لے رہے ہیں، سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا لیں، 4 گھنٹے پہلے آپ کھانا لیں اور بایابادی والی چیزیں نہ لیں۔ اکثر دوست، میرے بھائی، میرے بہنیں رات سوتے وقت چاول کھا لیتی ہیں، سوتے وقت اور فوراً سو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، معدے میں جا کے بایابادی پیدا کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور بندے کے جسم کے رسائن بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، رطوبتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، موٹاپے کی شکایت عورتوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں، موٹاپے کی شکایت ہو جاتی ہیں، احتلام مردوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، عورت کے پیریڈ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عورت کے پیریڈ میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے اور کئیوں کو تو آنے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ پھر جسم پھولتا ہے، نکلتا ہے، بچہ دانی متاثر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورتیں بچہ نہیں جلدی پیدا کر سکتی اور بچہ دانی کو سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے اور کئیوں کی بچہ دانی سکڑ جاتی ہے، اور مرد کیا ہوتے ہیں، احتلام کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ احتلام ہو کے جسمانی طور پر، اندرونی طور پر وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے آپ نے رات کو سوتے وقت بایابادی والی چیزیں نہیں کھانی، اور کھانا کوئی بھی آپ کا رات سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا ہے۔ اور میرا بھائی اکثر دودھ سوتے وقت پیتے ہیں، دودھ میرا بھائی سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے پئیں تاکہ اس کی آپ کو پوری افادیت ملے، پوری آپ کو طاقت ملے۔ اور جو غذائیں ہیں اب میں بتا رہا ہوں، صبح اٹھنے کے بعد، صبح جب آپ نماز ٹائم اٹھتے ہو یا صبح وقت سحری ٹائم اٹھتے ہو تو آپ زیتون کا 1 چمچ پئیں، انجیر 3-4 دانے۔ قرآن میں اللہ نے کسی پھل کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے کیلے کا ذکر نہیں فرمایا، آم کا ذکر نہیں فرمایا، کتنے میٹھے پھل ہیں، اللہ نے نہیں ذکر فرمایا۔ اللہ نے صرف زیتون اور انجیر کا ذکر کیا، اور ایسا ذکر کیا، اللہ نے قسم کھا کے ذکر کیا کہ مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم۔ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ یہ سب سے اچھے، معتبر اور قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل ہیں۔ اور زیتون کا جو پودا ہے یہ 16 سال کے بعد جا کے بالغ ہوتا ہے، انجیر کا پودا 16 سال بعد جا کے پیدا ہوتا ہے، اور مرد بھی 16 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ نے کوئی اس میں افادیت رکھی، یہ گرم نہیں ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ انجیر بہت گرم ہے، زیتون بہت گرم ہے۔ میرا بھائی یہ وہ گرم نہیں ہے جو انسانی صحت کو نقصان دے، انسانی صحت کو متاثر کرے، یہ وہ نقصان دے، وہ گرم نہیں ہے یہ میرا بھائی۔ یہ قوت مدافعت آپ کی وہ قوت آپ کی پیدا ہوگی کہ آپ کے اندر بیماریوں کے ساتھ لڑنے والی طاقت پیدا ہوگی، بیماریوں کے ساتھ لڑ کے آپ کو جسم کو توانا رکھنے والی طاقت پیدا ہوگی۔
टेंशन बोझलपन आपका ख़त्म हो जाएगा। और आप खाना खाएं तो इतना ना खा जाएं कि बहुत सारा खाना खा जाएं, आपको पानी की गुंजाइश ना रहे। और ज़्यादा खाने से बंदा सेहतमंद नहीं होता मेरा भाई। ज़्यादा बंदा अंदरूनी रतूबतें बनने की बढ़ना शुरू हो जाती हैं। रतूबतें क्या करती हैं? रतूबतें जब बढ़ती हैं, बंदा ज़्यादा खाता है, रात सोते हुए खा के फ़ौरन सो जाता है। वो रतूबतें, वो रसायन जब बढ़ते हैं तो भरने के साथ क्या होता है, बंदे के जिस्म पे टेंशन आना शुरू हो जाती है, बोझलपन आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, और जिस्म अंदर से खोखला खोखला फील करता है, थका थका बंदा फील करता है और ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिल पर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, गुर्दों पर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, और दिल की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, और हार्ट का मसला बन जाता है, जिगर का मसला बन जाता है, और गुर्दों का मसला बन जाता है। बंदा वीकली पूरा कमज़ोर हो जाता है। बड़ा गोश्त कम खाएं, बायाबादी वाली चीज़ अगर खानी भी है, चावल खाने का तरीका ये है कि आप दोपहर टाइम चावल खाएं ताकि हज़म हो जाए। वो रतूबतें जो पैदा हुई हैं वो अपनी जगह पे जाके मादे में जाकर और फुजले की सूरत में वो जिस्म से खारिज हो जाए। दोपहर के टाइम गंडा छोट ब्रीक ब्रीक साथ कट लें, गंडा प्याज कट के खाएं आप साथ, और रात सोते वक्त कोई भी खाना आप ना लें, ठीक हो गया। और दोपहर खाना कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, गुंजाइश रख के खाएं, ठीक हो गया। और एक वक्त पर खाएं। अक्सर होते हैं 1 घंटे के बाद रोटी खा ली, फिर 2 घंटे के बाद रोटी खा ली, फिर 3 घंटे बाद कोई चीज़ का, ऐसा ना करें मेरा भाई। ऐसे आपका मैदा भी कमज़ोर होगा, आपका जिगर भी कमज़ोर होगा, आपकी जिस्मानी कुव्वत कम हो जाएगी। तो क्या करें, एक टाइम खाएं आप, सुबह का टाइम रख लें, दोपहर का रख लें, शाम का रख लें, और उसी टाइम रोज़ाना खाएं, ठीक है। और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, ये तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी गंदे मादे पैदा करें, ठीक हो, वो ना खाएं। और सलाद खाएं, गोभी कटी हुई खाएं, सलाद खाने की ज़्यादा कोशिश करें। ये चीज़ें फुजलात, गंदे मादे आपके जिस्म से खारिज कर देती हैं। और सुबह उठें जब 3 या 4 दाने अंजीर के चबा के खाएं, भगोने की ज़रूरत नहीं, अक्सर रात को भगो देते हैं फिर सुबह ना, ऐसा ना करें। सुबह 3 या 4 दाने, 5 दाने, 6, 7 भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह चबा के अंजीर के लें, ऊपर से 1 चम्मच चावल वाला जैतून का 2 भी आप ले सकते हैं, 2 लें। और देखें आपका दिल तवाना रहेगा, तगड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा, आपका गुर्दा मजबूत रहेगा। आपका दिल और गुर्दा जब मजबूत रहेगा तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप जल्दी मरेंगे नहीं, आपके जिस्म पे कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका जिस्म तवाना रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अल्लाह के फजल से टेंशन, बोझलपन, चिड़चिड़ापन, थकावट ये आपके जिस्म से वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। और खाने वाली चीज़ों में क्या है, सलाद ज़्यादा खाएँ, बड़ा गोश्त कम खाएँ, और शोरबे वाली चीज़ें खाएँ। गोश्त जब बनाएं, छोटा गोश्त खा लें, मुर्गी का गोश्त खा लें, तो शोरबे वाला हो। रोस्ट कम खाने की कोशिश करें, ब्रोस्ट कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये कम खाने। और पिज़्ज़ा, शवारमा कभी कभार तो कोई बात नहीं, कईयों ने मामूल बनाया हुआ रोज़ाना पिज़्ज़ा खाना, रोज़ाना शवारमा खाना, और ऊपर से बोतल पीनी, तो मेरे सोडा पीना, तो मेरे भाई और दोस्तों ये चीज़ें आपकी कुव्वत बा को ख़त्म कर देंगी, कुव्वत मदाफ़त को ख़त्म कर देंगी, और आस्ता आस्ता अंदरूनी तौर पर वीक होना चाहिए। अपनी खुराक सादा रखें, सादा रखें। मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा जिनकी उम्रें बहुत 1.5 साल, पौने 2 साल, 100 साल जिनकी ज़िंदगियां हुई हैं, उनकी खुराकें क्या थी, सादा खुराकें थी, जो सादा रोटी, सादा हर चीज़ खाते थे। तो उनकी जितने ये फैशन चल पड़े, हम शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, और ऊपर से बोतल, मेरा भाई उतने दिल की बीमारियाँ ज़्यादा, उतनी गुर्दे की बीमारियाँ ज़्यादा। रात सोते वक्त शवारमा खा रहे हैं, रात सोते वक्त लोग पराठे बना खा रहे हैं, ऊपर से बोतल पी रहे हैं, तो मेरा भाई वो तो मैदे को वैसे ही तबाह कर देता है। आपको हो सकता है वक्ती तौर पर फीलिंग ना आए, वक्ती तौर पर आप कहें कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं होता। मेरा भाई ये इंसानी ज़िंदगी है, ये मैदा एक मशीनरी की तरह आस्ता 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 क्या होगा कि आपका मैदा कमज़ोर हो जाएगा, आप बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और जब बंदा जब एक दफ़ा वीक हो जाता है तो फिर उसको उसकी सेहत के बारे पर उसके लेके आना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वीक हो जाता है, बहुत उसका मसला बन जाता है, और उसको सेहत पर लाने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और जो मर्द अपने आप को कुव्वत क्या होता है मर्दों के साथ, मर्दों की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, औरत के पास जाने से फ़ौरन उसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, औरत के पास जाने से पहले फ्री हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये मसाने में गर्मी आ जाती है, शवारमा, पिज़्ज़ा, सोडा ज़्यादा खाने से,
और रात को सोते वक्त खाना खाने से आस्ता आस्ता क्या होता है, उनकी टाइम कम हो जाती है, उनकी अंदरूनी कुव्वत मनी कम पैदा होती है। मनी अगर पैदा होती है तो गंदी मनी, गलीज मनी पैदा होती है, उसमें तजाबियत होती है, उसमें पास सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पीक आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके स्पर्म मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अगर मनी के साथ वो तजाबियत निकलती है तो फिर क्या होता है, वो तजाबियत निकलती है जरासीमों को मार देती है, औरत के अंडों को मार देती है। तो मेरा भाई क्या होता है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, मर्द स्पर्म को मर जाते हैं और औरत माँ नहीं बनती, और ये मसला होता है। मर्द भी ठीक होता है, औरत भी ठीक होती है, स्पर्म में क्या होता है, मनी में क्या होता है, तजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाए। तजाबियत किस चीज़ से पैदा हुई, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर और सोडा पीने से, और रात को सो के फ़ौरन खाना खा के फ़ौरन सोने से ये तजाबियत जिसमें पैदा होती है, बोझलपन पैदा होता है और चिड़चिड़ापन पैदा होता है, टेंशन, थकावट ये जिस्म में आना शुरू हो जाती है, और मर्दों को एहतराम होना शुरू हो जाता है, लिक्विड आना शुरू हो जाता है, कतरा आना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मकदार में औरतों को लिकोरिया हो जाता है, औरतों की रतूबत बहना शुरू, बदबूदार और रतूबत बहना शुरू हो जाती है। हर टाइम रतूबत बहती है, लिक्विड बहता है, जिसकी वजह से उनकी मिख, उनकी ताकत अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाती है। तो क्या होता है, फिर ज़िंदगी ऐसे गुजरती है जैसे बेराह रवी की तरह ज़िंदगी गुजरती है, और ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे कटी पतंग हो, और ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे ये बेराह रह पे चलती हुई ये समंदर की लहरें, ऐसे ज़िंदगी गुजर बेरौनक खुशी के बगैर ज़िंदगी हो जाती है। बंदा कहता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या फ़ायदा मेरी इस दुनिया में। मेरा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बंदे वीक हो गए हैं, जो बंदे अपने आप कमज़ोर हो गए, ये बदपरहेजियाँ कर करके अपने आप को वीक कर लिया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। और कुछ बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भाई छोटे, क्या मुश्तज़नी करते हैं, हाथ रस्सी करते हैं, अपना लिक्विड बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, और वो भी अपने आप में कमज़ोरी फ़ील करते हैं। तो उनके लिए घबराना नहीं। अगर जो अपने आप से कर बैठा, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। और जिनकी सेहत बिगड़ गई, जिनकी सेहत कमज़ोर हो गई, तो वो भी घबराने की बात नहीं है उनको, वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है उनको। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, फिर एक तिला होता है, फिर एक मजून की डिब्बी होती है। वो मर्द जो अपने आप को औरत के काबिल ही नहीं समझते, वो मर्द औरत के पास जाने से पहले ही फ्री हो जाते हैं, वो मर्द जो अपने आप को अंदरूनी तौर पर गिरा गिरा फील करते हैं, अंदरूनी तौर पर अपने आप को थका थका फील करते हैं, वो मर्द जिनके ज़ेरों पर टेंशन आती है, वो मर्द जो चिड़चिड़ापन फील करते हैं, वो मर्द जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वो मर्द जो अपने आप को औरत के काबिल ही नहीं समझते, वो मर्द जिनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो मर्द जिनके स्पर्म बहुत कम हो गए हैं, वो मर्द जिनकी मनी में तजाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो मर्द जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए, जो अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि ये बस एक बोझ बन गई, एक ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरेगी, टेंशन में, बोझलपन में। मेरा भाई, वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरे भाई हो, मेरे छोटे भाई हो, बड़े हो तो मेरे बाप की जगह, छोटे हो तो मेरे बच्चों की जगह, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अगर बीमारी आ गई है तो अल्लाह ने जड़ी बूटियों में इतनी ताकत पैदा की है कि बंदा अपनी सेहत, पहले वाली सेहत से भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। जो अपने आप पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे और इतना कमज़ोर हो गए कि अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, अपने आप को मर्द नहीं समझते, और उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। और तो मेरा भाई, उनके लिए हमारा 40 दिन, पहले तो अल्लाह से तौबा कर लें। जितनी गुनाह हो गया, जितने इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो बंदा तौबा करे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, आप भी कहते हैं या अल्लाह में, तो अल्लाह ताला फरमाते पिछले मैं सारे ही माफ़ कर देता हूँ। और अच्छे अमल करना शुरू कर दे, नमाज पढ़ ली, रोज़ा रखा, अच्छे अखलाक, कुरान की दावत, फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारी नेकियों में तब्दील कर दूंगा और मुझे परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें हम। और अल्लाह कहते हैं जब मेरा बंदा मुझसे सुलह करता है, गुनाह की ज़िंदगी से वापस आता है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं चुरागा करता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे सुलह कर ली है। इतना अल्लाह खुश होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो हम अल्लाह के दरबार में, या दाऊद, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वाक़या ज़हन में आ गया, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, अल्लाह फरमा जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहें या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों को सुना दे। फरमाया नहीं, जाओ गुनाहगारों को कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो मैं सारे ही माफ़ कर दूँ, तुम तौबा कर लो मैं सारे ही माफ़। फिर फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम को, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है
तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार, कैसा प्यार। वो तो हमें माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। इन्नी लका मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक़ की कसम, तुम्हें मेरी इज़्ज़त की, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। तो मेरे भाई और दोस्तों, पहले तो उस ज़िंदगी से तौबा करनी है। दूसरा, अगर अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं तो हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, सुबह शाम का कैप्सूल होता है और उसके साथ मजून होता है और एक तिला होता है 40 दिन के बाद, और तिले के बाद एक मजून की डिब्बी होती है। जितना मर्जी बंदा कमज़ोर है, थकावट फील करता है, टेंशन बोझलपन, औरत के काबिल नहीं समझता, पहले दिन से उसको जिस्म में फीलिंग आएगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं, हमारी दवाई में कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई इसमें नशा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, स्टीराज नहीं जो इंसानी सेहत के लिए ख़राब हो, इंसानी सेहत को नुकसान हो। गुर्दा आपका सेव, गुर्दे को ताकत मिलेगी इस दवाई से, दिल को ताकत मिलेगी, और पहले दिन से आप जिस्म में तगड़ा तगड़ापन फील करेंगे, पहले दिन से आपकी शावत बढ़ जाएगी और पहले दिन से आपकी थकावट दूर होना शुरू हो जाएगी। और थकावट तो मेरा भाई, हम कोई स्टीराज नहीं डाल रहे, आप हमारी दवाई को लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं, जहाँ से दिल करे आप चेक करवा सकते। हमारी दवाई में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं। मेरा भाई और दोस्तों, अगर मैं आपके साथ कोई बुरा करूँगा, आपको कोई मुज़र चीज़, अक्सर हकीम हज़रात करते हैं, लोग डरे हुए हैं, हकीम हज़रात स्टीराइड डाल देते हैं, नशा डाल देते हैं, बाजारी गोलियाँ कूट कर डाल देते हैं मेरा भाई, और स्टीराइड जो गुर्दों को नुकसान, दिल को नुकसान देते हैं मेरा भाई, ये ज़्यादती करते हैं। मैं उनके आगे हाथ बांधता हूँ, इंसानियत के साथ ज़्यादती ना करें, कल को हमने भी मरना है, कल को अल्लाह के दरबार में पेश होना है, इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं। तो मेरे भाई, शिंगरफ, तांबा, कुचला, सेंगिया, ये कभी ना खाएं, ये गुर्दों को नुकसान देता है, दिल को नुकसान देता है। तो जो हमारा 40 दिन का कोर्स है, जो हमारी कोई भी दवाई है मेरा भाई, 30-40 साल की ज़िंदगी अगर मैं आपके साथ ज़्यादती करूं, आपकी सेहत के साथ खेलूँगा, तो मेरा भाई, तो मैं उस चीज़ का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह मुझे इस्तकामत आफ़ियत दे रखे। 2001 से 18-19 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस्तकामत आफ़ियत दी है। मैंने इस चीज़ में कोई मुज़र चीज़ नहीं डाली, कोई ऐसी प्योर देसी जड़ी बूटी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो किसी की सेहत को नुकसान दे। तो ये कितने भी बंदे अपने आप कमज़ोर फील करते हैं। 40 दिन की 10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, और पहले दिन से आपको जिसमें ताकत आएगी, आपकी ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ होगी जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है। और फिर जो बंदे हाथ रसी कर करके अजूतना से की रगें मर गई, फ़ौरन शाह, उनके लिए फिर हमारा 10 से 12 दिन का तिला है, उसके साथ भी कैप्सूल होंगे। कैप्सूल रगों को अंदर से गर्म करेंगे, और जो हमारा तिला है वो ऊपर से उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, उसकी मोटाई पूरी हो जाएगी, सुकड़ गया जो उसकी लंबाई मोटाई वो पूरी हो जाएगी। और बाद में जो मजून की हम डब्बी देते हैं, तो मेरा भाई, जितनी आपके जिस्म में मनी की 40 दिन में आप क्लियर हो गए हो, वो इसलिए देते हैं बाद में मजून की डिब्बी कि आपकी जितनी मकदार कम होगी मनी की, मनी पतली हो गई, सपरम कम हो गए और तजाबियत ज़्यादा होगी, और उसको कम करने के लिए और सपरम को बढ़ाने को, मनी की मकदार को बढ़ाने के लिए, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मनी पैदा होगी, और मनी मोटी पैदा होगी, गाढ़ी पैदा होगी, और आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। तो ये हमारा 40 दिन का कोर्स है। 6000 रुपये में पाकिस्तानी हम ये कोर्स देते हैं, और इससे एक थोड़ा सा ऊपर है वो 11,000। 2 किस्म के हम 40 दिन के कोर्स बनाते हैं, एक 6,000 रुपये में है और एक 11,000 रुपये में है। दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही 100%। जो ज़्यादा ही मर्द कमज़ोर फील करते हैं, कहते हैं यार नहीं मैं अफोर्डेबल, हम तो लोगों का बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लोगों का भी हमें हिसाब लगाना, गरीबी है, अपने घर बच्चों का पालें या दवाइयाँ खाएँ। तो मेरा भाई, ये 2 किस्म के हमने तैयार किए हैं, एक 6,000 रुपये में और एक 40,000 रुपये में। दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम करते हैं, दोनों ही 100% काम। जो बरौन ममालिक में जाते हैं, हमारी दूसरी दुनिया में दवाई जाती है, वो हम 11,000 रुपये का भेजें। क्यों भेजते हैं यार? दूर बैठा है, प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, कोई कमी रह ना जाए, कोई ऐसे ना कहे, गिला ना करे हमसे, जो हमने बातें की हम उन बातों पे पूरा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन दिनों में दवाई खाई हो हमें दुआ देते हैं। एक औरत के, एक मर्द के चेहरे पे जब खुशी आती है तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी खुश होता है कि यार अल्लाह ने हमारे ज़रिए किसी के चेहरे पे खुशी लाई, और ये खुशी हम देखना चाहते हैं। तो कोई मर्द मेरा भाई कमज़ोर फील करता अपने आप को, टैमक नहीं है, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर फील करता है, तो 40 दिन का कोर्स, कॉल और व्हाट्सअप नंबर मेरा ऊपर आ रहा है। किसी किस्म का पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। आपको आपके घर TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर दवाई मिलेगी। और बाकी जो दुनिया दूसरे ममालिक में है, वहाँ की डिलीवरी मैं दवाई इधर से UK में भेज देता हूँ, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में मैं दवाई इधर से भेज देता हूँ इकट्ठी। उधर मेरा नुमाइंदा अब्दुर्रहमान नामी बंदे का बैठा हुआ, अब्दुर्रहमान नामी बंदा मेरा नुमाइंदा बैठा हुआ, तो वो बाकी दुनिया में, पूरी दुनिया में दवाई भेज देता है। और उससे क्या होता है, इधर पाकिस्तान से दवाई भेजें तो टाइम बहुत लग जाता है मेरा, 3-3 महीने, 2-2 महीने लग जाते हैं। दवाई को रास्ते में रोल देते हैं, इसलिए मैं UK में इकट्ठी पहुँचा देता हूँ,
और वहाँ से वो दूसरी दुनिया में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई जहाँ बैठे हुए हैं आपको वहाँ दवाई पहुँच जाएगी, और उनकी सर्विस अच्छी है, जल्दी पहुँचा देते हैं। इसलिए मैं इधर से यूके दवाई भेजता हूँ और उधर से वो कोर्स आगे भेज। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो, किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत, औरतों को लकोरिए की ज़रूरत हो, मजून निसा औरतों का होता है, औरतें थकी रहती हैं, बुझियाँ रहती हैं, उनके लिए मजून निसा होता है। मर्दों के लिए 40 दिन का कोर्स होता है। किसी मेरे भाई को चाहिए, और यूके का नंबर भी आ रहा है ऊपर, और पाकिस्तान के मेरे नंबर भी आ रहे हैं ऊपर। पाकिस्तान में चाहिए तो मेरे नंबरों पर रब्ता करें, यूके में चाहिए तो अब्दुर्रहमान भाई के नंबर से रब्ता करें, और कुछ पूछना है, दवाई के बारे में पूछना है, कोई बीमारी के बारे में पूछना, फिर मुझसे रब्ता करें। वो अब्दुर्रहमान नामी सिर्फ बंदा आपको दवाई सिर्फ डिलीवर करेगा, बाकी उसका कोई हिकमत से नहीं लेन देन, यानी कि हिकमत का वो आपको नहीं बता सकता कोई बीमारी के, वो आप मुझसे रब्ता करें। किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत हो, ये मुकम्मल कोर्स मंगवाना हो, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको आपके घर 2 दिन के अंदर अंदर मिला। मेरे कॉल और व्हाट्सएप पर नंबर है, किसी भाई को ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें, मुझे कॉल करें। और किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, फिर भी मेरे मुझसे कॉल और व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। यूट्यूब पर अब हाफिज हकीम उमर फ़ारूक लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये गुज़र जाएगी, गुज़र रही है, और ये ज़िंदगी बर्फ़ की मानंद है, जैसे बर्फ़ एक दिन बूझ ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगी, ये हमारी ज़िंदगी भी एक दिन ऐसे हो जाएगी जैसे हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद था ही नहीं। जैसे हमारे दादा परदादा आज ऐसे हैं जैसे वो दुनिया में थे, हम ही हैं, और हम भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे, और नए लोग होंगे, नई दुनिया होगी, नए यहाँ बसने वाले होंगे, नए यार लोग होंगे, हम नहीं होंगे। तो इस मर जाने मिट जाने से पहले जिसकी मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को पैदा किया, और मैंने कहा मैं देखूंगा ये मुझे राज़ी करता है या अपने मन को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ने फरमाया मैं देखूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमान है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा है, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी ज़िंदगी में मैं बरकत डाल देता हूँ। जो रिश्तेदारों के से सिला रहमी करता है, अल्लाह फरमाया उसकी रिज़्क़ में, उसकी ज़िंदगी में, उसके रहन सहन में बरकत डाल दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह 2 चीज़ें अल्लाह मांग के बगैर नहीं देते, एक अल्लाह की मोहब्बत और एक हदायत। अल्लाह पैसा दे देगा, गाड़ी बंगला हर चीज़, और अल्लाह अपनी मोहब्बत अल्लाह से मांगे बगैर नहीं मिलेगी। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हदायत मांगे, और अहले बैत से मोहब्बत मांगे। अहले बैत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये हसन और हुसैन, ये हसन और हुसैन मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे या अल्लाह तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। तो अहले बैत की मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान का जज्बा है। तो अहले बैत की मोहब्बत हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो, अल्लाह के अहकामात मानकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। देखना ज़िंदगी में कैसे सुख आता है, देखना ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी कैसे मज़ेदार गुजरती है, देखना किस दुनिया में ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं, और जिस्म कैसे आपका खुश रहता है, कैसे आप अल्लाह ताला आपको ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, दुनियावी सुकून, हर चीज़ में अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे देंगे। नूर ही नूर, अल्लाहुम्मा जल फ़ी दमी नूरा, फ़ी लहनी नूरा, फ़ी ऐनी नूरा, फ़ी जसदी नूरा, नूर ही नूर हो जाएगा, बरकत ही बरकत होगी। उससे मोहब्बत करें, उसकी तारीफ़ करें। बद्दू बैठे मस्जिद में अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या मल्ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसे कोई आँख ना देख सकती है, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ऐ वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो, व यासिफुहुल वासिफून, ऐ वो ज़ात जिसकी तारीफ़ करने वाले उसका हक़ ना अदा कर सकें, वला तग़य्युरुल हवादिस जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, वला यख्शद दवाइर जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु अदाक़तिल अमतार जो बारिश के कतरों की दाद को जाने, व
वादा वरकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की दात को जाने, वादा माज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है जाता है चाहता है उसकी दात को जानता है। यालम मकाइल बिहार व मसाकिन अल जिबाल, जो समंदरों के पानी का वज़न किए हुए है, पहाड़ों का वज़न किए हुए है, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। ए वो ज़ात ला तुवारी मिन्हु समा, आसमान जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए ख़ज़ाने उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला जबलुन माफ़ी वारिही, और पहाड़ों के गार भी उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ये वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे। तो आपने फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी हुई। फरमाया ले आओ। फिर आपने उसको दी। फरमाया पता तुझे किस बात कर दी है? वो कहने लगे रिश्तेदारी की। मैं फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम भी अल्लाह की तारीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाहुम्मा अन्ता हक्कु मन ज़ुकिर अहक्कु मन उबिद अंसरु मन उब्तुगिया और अकु मलिक अजवल सुइल औ सौ मन आता। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है जिसको दुखड़ा सुनाया जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जिससे मांगा जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जो जिसकी इबादत की जाए। तू एक है, तू तने तना, तू वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन उब्तुगिया है और अकु मलिक है, अजवल मन सुइल है, औ सौ मन आता है। वो बादशाह है कि अल खल्क़ वल अमर वल्लैल वन्नहार वमा सकना फ़ीहिमा लिल्लाहि वहदा, मखलूक उसकी, हुकूमत उसकी, दिन उसका, रात उसकी, अशम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरातुम बिअमरे, सूरज उसके ताबे, चाँद उसके ताबे, हवाएं उसके ताबे, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सूतिहत, ये देखो से किसी ने मेरे गला फरमा रहे, वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, आसमान को क्यों देखते? अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, किसने उठाया आसमानों को? वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्नल मूसिऊन वजल्ना समा सकम महफूजा अलम नजल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मिआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सराजम वहाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा कुल्लु लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा। अल्लाह का दावा सुनो, कुल्लु लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा कुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा अजीरु वला जारे अलैह। कौन है ज़मीन का मालिक? कौन है आसमान का मालिक? आसमान उसके कब्ज़े में, ज़मीन उसके कब्ज़े में, हवाएं उसके कब्ज़े में, मौत उसके कब्ज़े में। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, ताकत का मालिक, किबरियाई का मालिक, जबरूत का मालिक जल्ला जलालुहु, वो शहनशाह, वो शहानशाह, वो बादशाह, वो मेरा मौला है। उसकी तारीफ़ करो, उससे मोहब्बत करो। बाकी किसी अल्लाह पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ, लेकिन आँख वो हो जो किसी की बेटी को देखना छोड़ दे। फरमाया पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं तुझे अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाऊंगा तो फिर खुद कहेगा हाँ वो है वो वहदहु ला शरीक है, वो हक्कु मन ज़ुकिर है, हक्कु मन उबिद है, अंसरु मन उब्तुगिया है और अकु मलिक है, अजवल मन सुइल है, औ सौ मन आता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, गुज़र रही है, गुज़र जाएगी। अल्लाह को मानकर और अल्लाह की मानकर हम ज़िंदगी गुजारें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। देखना कैसे हमारी दुनिया भी बनती है और हमारी आखिरत भी बनती है। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।